آواز آ رہی کلیئر؟ جی پوچھیے، آواز آ رہی؟ آواز آ رہی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، شہید کربلا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے عرس معصوم ملت سب کو مبارک ہو۔ یہ آج بارگاہ سید الشہداء، جن کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں الحسن منی وانا من الحسین، یہ سرکار کا آستانہ پاک ہے، اور یہ سرکار معصوم ملت کا مقام اور معاملہ ہے کہ ظاہر میں تو وہاں لوگ شعر پڑھ رہے ہیں، میں نے سنا کہ یہ رنگ علی ہے، رنگ علی ہے، رنگ علی ہے، لیکن یہ اہل بیت کا کرم کہ امام کا حکم مجھے لگا کہ یہاں سے اب ڈائریکٹ تم یہاں سے ریلے کرو۔ سبحان اللہ، یہ وہ رنگ ہے جو رنگ مولا علی کا چلا تو سبحان اللہ امام حسن مجتبیٰ امام حسین شہید کربلا سے ہوتے غوث پاک، اور غوث پاک سے غریب نواز، غریب نواز سے صابر پاک، صابر پاک سے نظام الدین اولیاء، داتا دربار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ بابا فرید گنج شکر، ان اولیاء کرام سبحان اللہ یہ سب رنگ مولائی ہے، اور جو مولائی رنگ سے چڑھنے والے ہیں لہٰذا اب یہ جانا بند کر دیں، جس در پہ جائیں گے وہاں ان کو رنگ مولائی ہی ملے گا انشاءاللہ۔ یہ سرکار معصوم ملت کا آج عرس ہے۔ اس لائیو کو صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ آج عطائے غریب نواز شیر ہندوستان کی دعا بارگاہ امام سید الشہداء کی اس بارگاہ سے سرکار معصوم ملت کے عرس میں دعا حضرت کے ہاتھوں سے ہو، اور وہاں کے حاضرین کی یہ خوش قسمتی ہے کہ دیکھو تم معصوم ملت کے عرس میں آئے کہ تم کو کربلا پہنچا دیا انشاءاللہ، اور ان کے انشاءاللہ طریقے پہ قائم رہ کے دنیا سے چلے جاؤ گے تو انشاءاللہ کل مرنے کے بعد بھی ان کی بارگاہوں کے اندر ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ جگہ حاصل ہوگی۔ آخری بات میں کہہ کے حضرت کو دعوت دوں گا، بس یہ بات بتانا چاہتا ہوں، الحمدللہ کوششیں لوگوں نے بہت کر لی کہ یہ چیز ختم ہو جائے، یہ مجمع ختم ہو، یہ بھیڑ ختم ہو جائے، لیکن تم کیا کوشش کر رہے ہو؟ یہ سایہ ہے امام علی مقام شہید کربلا کا، ان کا حکم ہے کہ اس کو بڑھاتے چلے جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ یہ فیض کربلائی ہے، یہ فیض مولا علی ہے، یہ فیض امام زین العابدین کا فیض ہے، یہ وہی بارگاہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کربلا کا واقعہ جھوٹا ہے، ارے اندھو، ارے کم بختو، آؤ ذرا دیکھو، یہ وہی میدان کربلا ہے۔ ایک طرف عباسی علمبردار کے بازو یہاں پر ہیں، ایک طرف عباسی علمبردار کا روضہ یہاں پر ہے، ایک طرف یہ خیمے ہیں، میری بائیں جانب یہ خیمے سرکار امام علی مقام کے خیمے لگے ہیں، جن کے اندر اہل بیت اطہار کی بیویاں ہیں، جن کے اندر سیدہ زینب بھی ہیں، جن کے اندر
अंदर बीमार ज़ैनुल आबिदीन के भी हैं, जिनके अंदर हजरत अली असगर भी हैं। आओ जरा देखो, ये इमाम के रोजे से थोड़ा आगे बढ़ो तो शहादत गाहे इमाम अली असगर है, जहां पर उनके हुलकूम पे तीर मारा गया। ये नासिबी कहते हैं कि ये झूठी कहानी है। ओ कमबख्तो, तुम झूठ बोलते हो। आओ जरा देखो, करबला का मैदान गवाही दे रहा है, करबला की वादिये गवाही दे रही है। ये देखो मेरे बाई जानिब नहरे फरात बह रही है, ये फरात का पानी गवाही दे रहा है, ये वादिये करबला आवाज दे रही है। वो झूठे हैं, लेकिन ये वो है अल्हम्दुलिल्लाह कि वाकया लिखा कि जब सर इमाम अली मकाम करबला मोहल्ला से नेजों पे रख करके ये यजीदी लेके चले तो कुरान की एक पढ़ने वाला सूरे कहफ की तिलावत कर रहा था और वो इस आयत पे पहुंचा कि सूरे कहफ के अंदर जो वाकया है, फरमाया कानू मिन आयातिना अजबा, ये हमारी अजीब निशानियों में से एक निशानी है। एक जब ये आयत करीमा पढ़ी गई तो लोग बयान करते हैं कि इमाम अली मकाम की जबान मुबारक से आवाज आई और उससे अजीब निशानी हुसैन की शहादत है। आओ जरा देखो वो झूठे कहां हैं जो कहते हैं झूठ है। ये देखो मैदान करबला के अंदर अब्बासी अलंबरदार का रोजा सामने है। ये देखो ये वो जगहें हैं जहां पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खेमा था, ये वो जगह है जहां पर हजरत इमाम अब्बासी अलंबरदार का खेमा था, ये वो जगह है जहां पर सरकार इमाम अली मकाम का खेमा था। आओ जरा तारीख उठाकर देखो, 50 और 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर करबला से चलने, करबला के अंदर आने वाला 1700 किलोमीटर कमोबेश मक्का शरीफ से मदीना करबला मोहल्ला आया है ऊंटों पे सफर करके। उस 50-55 डिग्री टेम्परेचर के अंदर इमाम अली मकाम अपने बच्चों को लेके करबला के मैदान के अंदर आ रहे हैं। सच कह दिया इमाम हसन ने, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकिया, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकिया, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। जो अहले बैत का नहीं, कसम खुदा की उसको ना गौस की गौसियत। तुम जाते हो गौसे पाक के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गौसे पाक की बारगाह में देखा, मैंने कहा हुजूर ये आपकी करामत है, कुछ नासबी आपके वहां आ रहे हैं, लेकिन मेरे गौसे पाक ने, पीराने पीर ने अपनी खानकाह कादरिया के अंदर एक शजरा लगाया है। उस शजरे को मैं पढ़ने लगा तो देखा एक तरफ से हसनी है, एक तरफ से हुसैनी है, एक तरफ से शजरा पढ़ता हूं तो इमाम मूसा काजिम का नाम आता है, इमाम जाफर सादिक का नाम आता है, हजरत जैद महज का नाम आता है। आओ जरा नासिबियो, कहा हो तुम, जरा बताना चाहता हूं। आओ जरा देखो, तुम लोग जो कहते हो कि गौसे पाक, तो गौसे पाक कौन है? ये गौसे पाक मौला अली के बेटे हैं। तो हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्यदी हो? अरे खिजर मजमा बहरैन है चश्मा तेरा, दरिया तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा के भी मानने वाले हैं, लेकिन ये नासिबी जब सहाबा पे हमले हो रहे थे, सहाबा को जानी कहा गया, सहाबा को खाती कहा गया। जब ततीरियों ने गुस्ताखिया की तो यही करबला के लोग निकले थे, यही हुसैनी निकले थे जिन्होंने कहा था हम सहाबा को जानी होना बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये कमबख्त दलील दे रहे थे कि सहाबा से जानी वाली इबारत सही है, सहाबा से खता वाली इबारत सही है। ये कमबख्त उस वक्त वो साथ में थे, लेकिन ना ये सहाबा के हैं ना ये अहले बैत के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले बैत वाला है वही सहाबा को मानता है। बल्कि मैं तो कहना चाहता हूं, ये नबी के बारे में जब उसने बेबस वाला जुमला कहा था, ये नबी को भी अगर इनके अंदर ईमान होता, लेकिन ये सिवाय पीर पीर, सिवाय पीर पीर, सिवाय शेख शेख, सिवाय पीर पीर, सिवाय शेख शेख, पीर को कहो तो चिल्लाते हैं। लेकिन आओ जरा देखो, होंगे पीर होंगे हम नहीं जानते, बंदा खुदा का हूं, उम्मती मुस्तफा का हूं, कलमा खुदा का पड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कसम खुदा की जो कुर्बानी हुसैन की है, जो कुर्बानी करबला की तारीख बता रही है, करबला की वादी बता रही है, अली असगर के कदमों की आहट बता रही है, इमाम अली अकबर के घोड़ों की चहचहाट बता रही है, अब्बासी अलंबरदार के बासुओं की आवाजें बता रही है। अगर करबला ना होता तो इस्लाम ना होता, करबला ना होता तो मुसलमान
सलमान ना होता, करबला ना होता तो कुरान की बताने वाले ना होते, करबला ना होता तो हदीस को पहुंचाने वाले ना होते। ये जो कुछ है सदका हुसैन का है। लिहाजा अब मैं आपसे ये उर्से मासूम मिल्लत के अंदर ये बात कह के रुखसत होना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अताए गरीब नवाज शेर हिंदुस्तान हुजूर मासूम मिल्लत के उर्स के अंदर ये उनकी मकबूल, जलने वाले जले, मरने वाले मरे। मैंने 3 साल पहले कहा था अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने झंडा लगा दिया है। मेरा चैलेंज है उस इलाके में कोई वली भी आएगा तो उसको हुक्म होगा पहले यहां हाजिरी दो। ये कोई वो वली नहीं है जिसको वली दुनिया बना रही है, जिसको झूठ के कव्वाल बना रहे हैं, नाजिम बना रहे हैं, लेकिन ये वो वली है जो करबला से बनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सलामत रखे हुजूर नासिर मिल्लत को, उनके शहजादगान को, हुजूर मासूम मिल्लत के शहजादगान को अल्लाह ताला उनकी इस खिदमत को और हमारी, हमें और आपको ईमान पे जिंदगी और ईमान पे खात्मा अता फरमाए। अब आमीन कहिए। हुजूर शेर हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बी व साहबिही अब्दद दुहूर व कर्रमा। सबसे बड़ी करामत सुनी, दुआ करी थी करबलाए मोहल्ला में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको और इस्तिकामत अता फरमाए। मौलाना अदीन ने माशाअल्लाह रुजू कर लिया, अल्लाह उनको और इस्तिकामत अता फरमाए। क्योंकि आला हजरत ने लिखा है कि किसी आलिम दीन की तौहीन से अंदेशा इस बात का है कि उसको कलमा वक्ते मौत नसीब न होगा। माज़अल्लाह आलिम हक बयां, आलिम हक बयां। मेरे बिरादरे मुअज़्ज़म हजरत मौलाना मासूम रज़ा साहब क़िबला रज़ी अल्लाह तआला अन्ना, अल्लाह अल्लाह उनकी ये सब कुर्बानियों का सदका है। अल्लाह अल्लाह उन्होंने न हवाओं को देखा, न फिजाओं को देखा, न माहौल को देखा। अल्लाह ताला उसी नक्शे कदम पर उनको भी और मेरे बिरादरे मुअज़्ज़म मौलाना नासिर रज़ा साहब क़िबला को और मुझ गुनाहगार सियाकार खताकार आसी पुरमासी को मौला तौफीक रफीक अता फरमाए। उसी पर हम लोग चले। सुभान अल्लाह, यही असल है, यही कुल है, यही दुआ है। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मैं तो यही शेर यहाँ बार बार गुनगुनाता रहा जो कारी वसीम साहब के शहजादे ने पढ़ा था। उर्से मासूमी है रंगे करबलाई है, उर्से मासूमी है रंगे करबला। वो ऐसा उन्होंने पढ़ा कि उसी उर्स के मौके पे मुझे मेरे आका ने अपनी बारगाह में इज़्न हाजिरी अता फरमा दी। शहीद करबला के खून से लिल्लाह धो देना, कयामत में खुले जब फर्द इसियां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। झोली को मेरी, मेरे पीर मुर्शिद ने अर्ज किया है, झोली को मेरी भर दो, नवासों का तसद्दुक सग है तेरे, मोहताज तेरे दस्ते निगर भी। अल्लाह ताला जितने हाजरीन हाजरात यहाँ हाजिर आए हैं उन सब को मौला मासूम मिल्लत के फैजान से माला माल फरमाए। और उनका पैगाम यही था जो पैगाम खुदा की कसम आला हजरत ने दिया, यही फरमाते रहे, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैता का आदत कीजिए, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा रदी अल्लाह ताला। सुनो, उर्स का मकसद यही है, उर्स का माना यही है। मगर अब उर्स का माना पेट का भरना, अब उर्स का माना है रकम का बटोरना, अब उस उर्स का माना देख लो आज
गादगिरी है, कह रहे दुआ, अरे मिट गए मिट गए मिट गए मिट गए, मिट जाएंगे आदा तेरे, बहुत गुरूर था मगर पकड़े गए हैं इंशाअल्लाहुल कहार। ये तो यहाँ की वजीर आजम मोदी की मार है। अरे तौबा कर लो, आखिरत के आजाब से बच जाओ, अब भी टाइम है, तौबा कर लो मौलवियों। नबी को बेबस लिखा, तुम्हारा कोई सीमीनार नहीं हुआ। नबी सहाबा को जानी लिखा, तुम्हारा कोई सीमीनार नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह, प्यारे मज़ारात को मंदिर और कहना चाहिए गुरुद्वारे से तस्वीर दी, तुम्हारा कोई सीमीनार हुआ नहीं हुआ। सब मर गए सब मर गए सब मर गए, मासूम मिल्लत जिंदा है और खुदा की कसम कयामत तक उनका फैज जारी और सारी रहेगा। अल्लाह ताला मेरे पीरो मुर्शिद के तमाम शहजादों को और उनके तमाम नबीरगान को आलिम बामल बनाए, दीन का खादिम बनाए, उम्र तवील अता फरमाए और उनके प्यारे दादा जान के नक्शे कदम पर उनको हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। इस उर्से मुक़द्दस को दिन दूनी रात चौगनी मौला तरक्कियां अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लो भैया, आ रहा है।